Yeah. Hi. So this here is the weekly chart. So this is a young IPO base that we're trying to trade. All right. So the beauty of trading IPO bases is it doesn't have supply on the left hand side. So that helps in getting explosive moves like this. So here this is a weekly chart of Garuda Constructions. So same understanding here we have that we generally follow: low, lower high, price respecting the raising moving average. Okay, so this is what we call as standard operating procedure that we use in our general stock study also. Yeah, I just call it as a mini SOP. But the right way to understand this thing is, first you have to work on your normal mid small cap stocks, basically on a bigger price action. Once you understand थिंग्स दैट जहाँ जब आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं अच्छी तरीके से, देन यू मूव ऑन फर्दर टू ट्रेड यंग IPO basis. The understanding and this philosophy, the strategy is the same, because simply our strategy is based on the DNA of price movement. Whatever happens, the price has to move in this way only. There is no other way the price can move. It has been happening right from the inception of the market, and it will happen forever. With that said, सेम चीज ये हमारा हो गया यहाँ पे लो, लोअर हाई, प्राइस रिस्पेक्टिंग द रेजिंग मूविंग एवरेज. तो at this point of time, when I see on the left hand side, I don't have any hurdle for me over here, right? दिस वॉज द डेली, आई मीन सॉरी वीकली. सो मैं जब डेली पे जाता हूँ यहाँ पे वापस, देखिए सेम थिंग. Daily will give me a more clearer picture of things. So my understanding will be like, if I have the virgin supply or the virgin resistance, I am fine. उसके अलावा कुछ ना हो तब मैं अटेम्प्ट करूँ एंट्री के लिए. दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग वुड बी. तो सेम थिंग, लो, लोअर हाई, price respecting the raising moving average. And when I see on the left hand side here, I actually don't have any hurdle over here for me for the price to go up. So this is fine, this has to be, otherwise up. This is basically an inside the base play, inside the base setup को ऐसे प्ले करते हैं. सो देन वी हैड अ ट्रिगर इन द फॉर्म ऑफ अ नैरो रेंज डे. हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया बट वी गॉट शिकन आउट. तो आई ऑलवेज से यू हैव टू कीप द स्टॉक्स दैट स्टॉप यू आउट मोर क्लोजर देन दिस, देन थिंकिंग और गोइंग बिहाइंड न्यू स्टॉक्स. दिस इज व्हाट यूजुअली जो बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट पीपल जो होते हैं, they make this mistake. Though they, once the stock had shaken you out, you will just go for another stock searching another name. You don't have to do that. So abhi isme the setup is still very much valid for me here, because this was my trigger. The moving averages are raising for me over here, and I have a perfectly beautiful setup for me over here. एंड अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो इस यही एक फ्रैक्टल बनेगा. ये मतलब फ्रैक्टल का मतलब ये होता है कि जो हायर टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा. एंड अगेन दिस इज एन आर्ट. अब जब मैं राउंडिंग बेस बोलता हूँ तब ऐसे ही एग्जैक्टली ना होगा. ये अलग तरीके का राउंडिंग बेस है. मतलब यू गेट द फील, राइट? दैट इज वॉट यू बेसिकली नीड हियर. सो दिस वॉज माई ट्रिगर, दिस वॉज माई एंट्री, शुकन आउट. आई डेंट गिव अप. नेक्स्ट डे सेम अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं. सो आई यूजली enter on 5 minute chart, simply because my philosophy is like, you enter intraday, hold it positional or swing. And that is why uh, I just catch this kind of moves and that kind of RR, which in turn helps me. Just imagine, जब मुझे यहाँ से 40% या 60% मूव मिल गया, तो मैं 2% रिस्क कर रहा हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है, मतलब 30R. सो दिस 30R इज वॉट अलाउज मी टू कीप अटेम्प्टिंग. सो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, आई वॉज आउट, बट स्टिल आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अटेम्प्टिंग, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैड मिनी ट्रेड्स लाइक दिस, जो 1:30 20 ऐसे रहते हैं. तो जब आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसे हो जाता है, तो देर इज, यू बिकम फियरलेस, राइट? बट दिस विल नॉट हैपन फ्रॉम डे वन. एक तरीका होता है इसको अचीव करने के लिए. उस तरीके से ही अपन को काम करना है, बिकॉज सुकून से आगे काम करना है मार्केट में, राइट? सो व्हेन यू डू दैट, तो यू विल स्लोली डेवलप इट दिस वे. तो दैट वाज द एंट्री पॉइंट ओवर हियर, एंड सिंपली यहाँ से इसने it simply took up straight up, right? And this is what exactly happened here. uh, UC लगाया. At this point of time I am having results due है, and I feel it's extended. थोड़ा बहुत रख के सारा निकाल लेता हूँ मैं in this situation. So that is what happened over here in this case, right? So इसके अलावा, if I tell a similar example that has happened very recently, is uh,
कौन सा था वो, 1 सेकेंड, ई आई, अच्छा, EIEL. तो दिस इज द अदर नेम दैट इट रिसेंटली ट्रेडेड. सेम थिंग, सेम चीज़ इसमें, कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस, सेम चीज़, same setup, same entry, and this is where I am currently, and I'm holding everything in this particular stock. I'm still holding everything in this particular stock. Same cheese. And or a cheese, or similarly, I had traded another one, namely this was the another one traded exactly same. This is how the stock has to move, boss. There is no other way the stock would move. This is how it has to move every single time. Trigger entry, right? Up this is But this has come to me after watching thousands and thousands of charts again and again, again and again, again and again. तो ऐसे होता है. तो वन ऑफ द बिग विनर्स वाज लाइक क्यू पावर, क्रेजी. ये देखिए सेम चीज, ये दिख रहा है आपको बस. दिस वाज दैट थिंग. ये और भी डीप टाइप हुआ था, मतलब दिस विल गो, वो जो हम देखें तो वो काइंड ऑफ हमारा मेन एसओपी है जो हम मिड स्मॉल कैप में इस्तेमाल करेंगे, तो उसका थोड़ा स्ट्रीमलाइन वर्जन मोर आ जाता है हमारे स्टॉक्स में, जहाँ पे वीकली पे भी हमको प्राइस एक्शन मिले इन आईपीओ नेम्स, एंड देन फाइनली जस्ट द डेली प्राइस एक्शन. यू नो सेम थिंग, लो, लोअर हाई, प्राइस रिस्पेक्टिंग द रेजिंग मूविंग एवरेज, अटेम्प्ट हियर, शुगन आउट, अटेम्प्ट अगेन. हिम्मत की कीमत है बॉस मार्केट में. दैट्स इट. मार्केट में हिम्मत की कीमत है. दैट्स ऑल. स्टिल होल्डिंग दिस. ये उठा के यहाँ तक 150% प्लस. फॉर मी इट्स सिंपल. 10-20 मूविंग एवरेज के साथ मेरे को टिल करना है बस. जाते रहना है, जाते रहना है, जहाँ तक लेके जाएगा वो. Right. So this is the understanding of how these things have to be done. But the procedure is, first आप mid small cap पे SOP, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको लेके काम करेंगे, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन समझ में आएगा. देन आप IPO नेम्स पे आएंगे जहाँ पे वीकली और डेली पे आपको सिंक करके काम करना है. देन फर्दर यू गो ऑन टू योर डेली अलोन. दिस आर वेरी यंग IPOs, मतलब लिस्टिंग से 1 महीने 2 महीने के अंदर ही इसमें. The beauty is you don't have the hurdles on the left hand side, and that is why the stocks move like this. And this same thing, ये आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो this was my entry here and this was the stop. I think इसमें और छोटा मिला मेरे को, less than 2% और stuff. तो this is basically a how much risk reward. अगर आप यहाँ पे देखोगे, did I do short? Yeah, शॉर्ट टूल लगा दिया मैंने, लॉन्ग टूल लगाना है. स्टॉप ओवर हियर. राइट. सो थोड़ा थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन इसको. या तो दिस टुक, दिस इज इट. दिस इज बेसिकली 85 आर एंड या 85 आर अराउंड. तो क्यों ऐसे करना है अपन को? सी, व्हेन आई एम ऑलरेडी इन प्रॉफिट, you know the step one is, to this game is getting your stock selection and your entry right. आप सिर्फ इसी पे काम करोगे पहले, एंड देन नेक्स्ट becomes selling. बट फॉर मी इट्स लाइक दिस ट्रेल, वट एवर जहाँ तक जाएगा स्टॉक, द स्टॉक हैज टू थ्रो मी आउट. बट हियर कम्स द कैच कि वंस यू गेट अ बिग बिट एक्सपीरियंस यू विल नो व्हाट द स्वीट स्पॉट इज. तो आप बेचोगे, फिर सेट होगा, फिर बाई करोगे. अब यहाँ पे आपको बाई करने के लिए क्यों नहीं डरोगे आप? बिकॉज यू सिटिंग ऑन सो मच बिग प्रॉफिट. मैं इस प्रॉफिट से 1 आर यहाँ पे रिस्क कर रहा हूँ, तो बाई मोर. इफ नॉट आई अटेम्प्ट मोर 2 to 3 times चलेगा मेरे को, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सिटिंग ऑन हाउ मच टिल हियर एट दिस पॉइंट. यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे रख लीजिए आप. सो हियर आई एम सिटिंग ऑलरेडी 22 आर. तो इसमें से मैं 2-3 बार यहाँ पे अटेम्प्ट करूँगा, बट लकीली आपको पहले बार ही यहाँ पे मिल जाएगा, तो एकदम अच्छा हो जाएगा. तो दिस इज हाउ इट इज. दिस इज लाइक सेल एड सेल एड सेल एड, बट दिस इज थोड़ा एडवांस स्टेजेस होगा. पहला स्टेज, go just behind getting the selection and the entry right. Selection सही करो, entry सही करो. That is the first stage. Do 50-100 trades in that, for that purpose only. The next 100 trades, figure out where are the points where you can add more. Where are the points you have to sell?
ये सेकंड से जाएगा आपका। बाइंग सेलिंग करते रहना है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। Okay, so that is why I just put where I buy, because selling is, if I start putting things on selling, so you will not be able to connect to it, right? So this is how we have to do things. तो तीन चार एग्जांपल्स हो गए, सब में सेम चीज ही करना है अपन को, राइट? दैट इज वाई करंट मार्केट प्राइस पे अपन को ट्रेड करना है, बिकॉज इन मार्केट सिर्फ कैपिटल जो फाइनेंशियल नहीं होता है, मेंटल कैपिटल भी होता है। जब आप मेहनत करते हो, जब आप काम करते हो, जब आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करके बैठे होते हो, तो यू सेइंग कि आई विल वेट फॉर दिस फॉर 2 मंथ्स इज बुलशिट। इट हैज़ टू गिव यू रिजल्ट्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। तो दैट इज वेयर मेंटल कैपिटल आपका यहाँ पे इंटैक्ट रहता है। आपने काम किया, रिजल्ट दिया, तो यू आर हैप्पी, यू गेटिंग दैट फीडबैक, राइट? सो दैट इज वन थिंग। Okay, so with respect to the mental capital and the actual financial capital, and ultimately, as I said, the game is of risk reward, right? So when you make this kind of risk reward, you are fearless, you don't worry because आप 1:2 1:3 के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। आपका at minimum bare minimum 1:10 1:8 1:7 मिनिमम ऐसे रहेगा, राइट? क्योंकि थोड़े स्टॉक्स होते हैं जो 20% लगा देंगे and फिर नीचे आ जाएंगे, तो आप उसको देखिए प्राइजेशन के हिसाब से आप उसको काट दोगे, तो दैट विल स्टिल गिव यू 1:5 1:7, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इक्विटीज इज लाइक क्रेजी, and I suggest people who want peaceful money making to try to develop this thing. It will not happen in the start, थोड़ा थोड़ा करके आपको करना पड़ेगा, but this is the way. Rest and all, this is, I have found this thing after 11 10 years of understanding stuff to the core, मतलब एकदम deep. That is why I'm able to make that entries on 5 minutes. तो यहाँ पे आप जाके मैं अगर आपको दिखाऊंगा, तो दिस इज 21st of May 25, राइट? तो मैं 5 मिनट पे यहाँ पे जाता हूँ, 5 मिनट, let me just hide everything. So let me go to 5 minutes on 21st of May. 5 minutes, 5 minutes, hide everything, alt G, 21st of May 25. 21st of May, May 21st. See, so this is where, if I just uh, hide indicators, if I say, yeah, so see, हाँ, that's what I was क्यों ये मूव नहीं हो रहा है, I was like, yeah, so yeah, so this is how the entry was made. So from here we took up. So my philosophy is you buy intraday, hold swing, right? And you have to develop it slowly. Hope this helped, and this is how I trade. This is how my style of trading is. Trading equities, right? Thank you. And if you have any things, you can just connect with me. I can help you out. No worries. Thank you.